Hello children and dear parents. Hope you all are healthy and safe at home. Good morning. I am here again with the fourth chapter of computer formatting in Microsoft Word 2010. Today I am going to explain you second part of this chapter formatting in Microsoft Word 2010. Before starting part 2, take a quick recap. Student, in previous class we had studied about Microsoft Word. Microsoft Word is a word processor that helps you to create documents with a professional outlook. After that we had studied about Format Painter. The Format Painter tool is used when you want to copy and apply the formatting of one section of the text or graphic such as color, font style and size and border style to another section of text or graphic. Students, Format Painter में हमने यह जाना था पिछले क्लास में कि अगर कोई टेक्स्ट आपको सेम टेक्स्ट वैसा ही चेंज करना है, सपोज द फॉर्मेट यहाँ लिखा है और इसकी जो कलर है, डिजाइन है, साइज है, स्टाइल है, सेम फॉर्मेट आपको सेक्शन ऑफ में चाहिए, तो आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर जाकर जिस टेक्स्ट को आपको चेंज करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर छोड़ दीजिए. इसी सेम फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा. आई होप प्रीवियस क्लास आपको समझ में आई होगी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट applying header and footer. All right? Okay, what is header and footer? Header and footer is used to place some information on the top and at the bottom of every page respectively. You can include the title, chapter's heading, date, page number, author's name, etc. in this section. Students, हेडर फुटर इसलिए यूज किया जाता है, आप अपने पेज के टॉप में या बॉटम में कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, पेज के टॉप में हम क्या इंक्लूड करते हैं? चैप्टर की नेम, टाइटल, डेट एक्सेट्रा. और पेज के बॉटम में क्या इंक्लूड करते हैं? पेज नंबर, ऑथर्स नेम एक्सेट्रा. तो इसे इंक्लूड करने के लिए पेज में हम हेडर या फुटर का यूज करते हैं. ओके, इसकी यूज कैसे करते हैं? लेट्स स्टार्ट. फोकस ऑन द स्क्रीन हियर. The header and footer buttons are found in the header and footer group on the Insert tab. Click the header footer button. It will display a list of options. हेडर फुटर यूज करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा. लुक एट हेयर, यहाँ पे है इंसर्ट टैब, आप इस पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का. टेक अ लुक हेयर. यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है. सेलेक्ट द फर्स्ट क्लिक ऑन header and footer option. Okay, now select the edit header. यहाँ लास्ट में आ जाइए, नीचे से थर्ड नंबर है. टेक अ लुक हियर. मैं माउस के पॉइंटर को यहाँ मूव करिए, यहाँ पे ऑप्शन है एडिट हेडर. इन ड्रॉप डाउन मेन्यू the word will display the editable header at the top of each page. Click here, edit header. You can see here, you can see the change here.
The word will display the editable header at the top of each page. An additional tab named Design under the header and footer tools will appear on the ribbon. You can see here, यहाँ पे ऑप्शन आ गई है header and footer की. Go there, click on header. There are lots of designs. Click on header box and the type of the text you want to display here. For example, देखिए यहाँ बहुत सारे डिजाइन्स दी हुई है. अगर आप चेंज करना चाहते हैं देन here you can type whatever you want to. Suppose I am typing here class 4 Microsoft Word 2010. Okay. Now press the tab twice. आपको टैब बटन पे ट्वाइस क्लिक करना है कीबोर्ड से. 1 2. You can see here cursor move here. The pointer will jump to the right side. Click on the date and time button in the insert group on design tab. Again यहाँ पे आप अगर देखेंगे डेट एंड टाइम ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक कीजिए. The date and time dialog box appears. You can see here date and time की dialog box यहाँ पे आ चुकी है. Choose the desired date and time format. Click on OK button. यहाँ पे बहुत सारी डेट की डिजाइंस और फॉर्मेट दी है. आप इसमें से आपको जो पसंद है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और OK बटन पे प्रेस कीजिए. Suppose I had selected this and click on OK button. Now you can look here. Class 4 Microsoft Word 2010 is written here and date and time is written here. Alright. Now come to the footer one. हेडर के ठीक बगल में फुटर बटन है, आप उस पर क्लिक कीजिए. Now click on edit footer option. You can see here, look at here. The cursor will appear on the left side of the footer section. Check out here. It's blinking here. Cursor is blinking here. Press the tab key and the cursor will jump to the center of the page. अब आप टैब की को प्रेस कीजिए ताकि कर्सर पेज के सेंटर में आ जाए. Look, it's jumped to the center of this page. Now click on page number. Here it is option. Here page number is given here. You can click on page number. Now here you can select the style. Here see पेज नंबर पे जाकर आपने अपने स्टाइल में पेज नंबर सेलेक्ट किया और उस पर क्लिक किया. अब आप यहाँ देखोगे page number 5, it's written here. Okay. After that you have to click on close header and footer option. Take a look here. यहाँ पे close header and footer option शो कर रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो हेडर एंड फुटर का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा. देखा आपने. तो अगर आप इस पेज में देखेंगे हमने यहाँ पे हेडर यूज किया और क्लास 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 टाइप किया और यहाँ पे डे एंड डेट, और इस पेज के बॉटम में फुटर ऑप्शन के थ्रू हमने पेज नंबर टाइप किया. टेक अ लुक हियर. ओके, दिस इज हेडर एंड फुटर. होप
आपको हेडर एंड फुटर समझ में आ गई हो। नाउ we are moving forward to another topic, which is inserting column and column break. Alright, when you type in Microsoft Word, by default the text is displayed in a single column style or in a paragraph style. जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगल लाइन में टाइप होता है और एक पैराग्राफ में दिखता है। इफ़ यू विश टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट इन न्यूज़पेपर स्टाइल, स्टूडेंट्स आप सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप देखते होगे कि न्यूज़पेपर में एक पैराग्राफ में नहीं होता है, 1 2 3 अलग अलग कॉलम में न्यूज़ेज रहती है। तो अगर आप इसे न्यूज़पेपर स्टाइल में करना चाहते हो या कॉलम स्टाइल, Word enables you to create a document in 2 or more columns. So, अगर आप इस पैराग्राफ और कॉलम के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं। इंसर्टिंग कॉलम, सबसे पहले हम जानेंगे कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। द easiest way to create a multi-column document is to click on the page layout tab. Now you have to click on page layout option. Take a look here. Here is page layout option. Click here. Okay. And click on the column button in the page setup group. Take a look here. यहाँ पे पहला आपको ऑप्शन है पेज सेटअप, इसके ठीक यहाँ पे है कॉलम ऑप्शन। इस कॉलम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक here. A drop-down menu display different style in which columns can be created. आप देखोगे जैसे ही कॉलम ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू ओपन हुआ है जहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स की कॉलम शो कर रही है। सपोज 1 2 3 लेफ्ट राइट, सपोज हमने 3 किया। टेक अ लुक हियर, यह 3 डिफरेंट कॉलम में आपके टेक्स्ट को शो कर रहा है। पहले यह एक होल पैराग्राफ में था, नाउ इट्स शोन इन 3 डिफरेंट कॉलम। If you want to customize the columns, then click on the More Column option in the drop-down menu. Again click on Column button. 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट के अलावा आप और इसे कस्टमाइज करना चाहते हो तो सबसे लास्ट ऑप्शन है मोर कॉलम। क्लिक हेयर, मोर कॉलम्स। यू कैन सी इन दिस टाइटल बॉक्स 1 2 3 लेफ्ट राइट ऑप्शंस आर गिवन हेयर। नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन हेयर, अगर आप 3 के अलावा 4 5 कॉलम करना चाहते हो, यहाँ से आप अपने नंबर को चेंज कर दो। यहाँ पे विड्थ दिया है, स्पेसिंग दिया है, ये सारे सेटअप को चेंज कर लो अपने हिसाब से। सपोज जैसे मुझे चाहिए लेफ्ट, ओके, 2 कॉलम चाहिए जो कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। यू कैन सी द चेंज हियर। पहले ये 3 कॉलम में था, नाउ लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया पहला कॉलम जिसमें कुछ वर्ड्स है और सेकेंड कॉलम में डिटेलिंग के साथ दिया है। अंडरस्टूड? नाउ इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक। Another option is inserting column break. Alright, if you have already added column to your documents, then you might have noticed that some of the columns are not as balanced as you would like them to be. One solution to this problem is to add a column break. It will force the end of the column and move the text to the beginning of a new column. आप देखे होंगे जब आपने कॉलम वाले ऑप्शंस को यूज किया तो ये 2-3 डिफरेंट स्टाइल में चेंज हुआ। अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉपर 2 कॉलम में चेंज हो जाए या तो इसके लिए हम इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। Place the cursor before the text where you want to insert column break. Suppose यह एक पैराग्राफ है,
इसे आप कॉलम में चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले कर्सर को वहां ले जाओ जहां से आप उसे डिवाइड करना चाहते हो। सपोज यहाँ क्लिक ऑन एडुकेशन, मैंने कर्सर को एडुकेशन से पहले क्लिक किया। ओके, क्लिक ऑन ब्रेक बटन ऑन द पेज लेआउट टैब। अगेन पेज लेआउट टैब पे ब्रेक बटन पे हम क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे कॉलम ऑप्शन है, इसके ठीक ऊपर में यहाँ चेक करेंगे ब्रेक ऑप्शन है, क्लिक करेंगे ब्रेक ऑप्शन पे। इस पॉपअप मेन्यू में देखिए डिफरेंट स्टाइल्स दी हुई है। अगेन आप यहां से सेलेक्ट करेंगे कॉलम पे, क्लिक हियर column. Now you will observe that the text here, take a look. You will observe that the text following the column break will be begin in the next column. Education is यहाँ पे था, आपको याद होगा चाइल्ड के नीचे से यह पैराग्राफ स्टार्ट था, एडुकेशन इज। इसे कॉलम ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में यहाँ शो कर रहा है एडुकेशन इज। ओके, अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट, इस तरह से हम इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक का यूज करते हैं। Here our topic is finished. In next class we will discuss more about inserting column and column break options. For now, bye students. Have a nice day. Thank you.